Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have seen the formula to calculate the total surface area of a cuboid and a cube. We have also seen how to calculate the curved surface area, or you can say the area of four walls, by the formulas you can see of a cuboid, which was, you can see, 2h into L plus B. Then of cube, that was 4a square, right? So you can see this is how we can calculate the surface area of a cuboid and a cube, right? Whether it is total surface area or a curved surface area, that is area of four walls, right? Now based on that formulas, we are going to first see some examples, then we will further move on to the exercise 13.1, right? So let us now first see how to apply the formulas onto the questions, right? So सबसे पहला जो example है, that is example number first, that is given as that Mary wants to decorate her Christmas tree. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक Christmas tree है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और Mary नाम की गर्ल जो है वो डेकोरेट करने वाली है इस Christmas tree को. So you can see she wants to place the tree on a wooden box. So यहाँ पे आप नीचे एक wooden box देख रहे हैं. So मैरी क्या चाहती है कि एक wooden box के ऊपर जो है एक Christmas tree place करना है. So you can see this wooden box actually is a structure of cuboid, right? So यहाँ पे हमें इस wooden box देखते हैं पे पता चल रहा है कि ये किसकी structure है, cuboid की, because we can see the rectangles here, right? Now further let me just read this. So you can see on a wooden box covered with colored papers with picture of Santa Claus. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेपर है, colored paper. This is a colored paper, right? Now you can see अब मैरी क्या चाहती है कि इस colored paper को वो इस wooden box के ऊपर place करे like this. Getting my point? So पूरा cover करना है, पूरा का पूरा wooden box with the colored paper having the picture of Santa Claus on it, right? So question समझ में आ गया आपको? Now you can see she must know the exact quantity of paper. So इसकी कितनी quantity लगेगी, you can see, to cover the whole cuboid. समझ रहे हैं आप? So यहाँ पे she wants to know the exact quantity of paper to buy for this purpose. So मैरी चाहती है कि वो कितने colored paper खरीदे कि ये सारा का सारा cuboid जो है वो इन colored paper से cover हो जाए. Getting my point? So you can see if the box has length, breadth and height as 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter. So ये हमें यहाँ पे क्या given है, length, breadth and height of this cuboid. So यहाँ पे मैं mention कर देता हूँ, you can see the length, the breadth and the height is given to us as 80 centimeter. Then you can see breadth is given as 40 centimeter and the height is 20 centimeter respectively. You can see. So ये length, breadth, height given है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. Now how many square sheets? So ये जो sheets हैं, colored paper हैं, ये कौन सी structure है? That is a square, right? So सबसे important चीज हमें पता है कि square का area हम कैसे find out करते हैं. अगर मैं individually बात करूं तो square का area हमें पता है, that is a square, right? So यहाँ पे that is also written as a into a, or you can say side into side, whatever you like. So both are same thing. So यहाँ पे square का area हमें पता है किससे calculate होता है, side into side और a square. So अब यहाँ पे wooden box के ऊपर ऐसे कितने colored papers लगेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है. So उतने ही क्वांटिटी ऑफ पेपर्स लगेंगे जितना कि इस वुडन बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है. बाहर का टोटल सरफेस एरिया पे ही तो सभी ये कलर्ड पेपर्स लगेंगे. सो दैट मींस द टोटल सरफेस एरिया जो है उतने ही नंबर ऑफ शीट्स जो हैं वो लगने वाली हैं. गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया पहले कैलकुलेट करना होगा, देन हम इस शीट का एरिया भी कैलकुलेट करेंगे साइड इनटू साइड से. देन फर्दर हम एक्चुअल में कैसे निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ शीट्स. जब भी हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालनी होती है, यू कैन सी नंबर ऑफ एनीथिंग, लाइक हियर वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शीट्स दैट विल बी यूज्ड ओवर टू दिस, यू कैन सी क्यूबॉइड टू कंप्लीटली कवर दिस, राइट? सो यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ या फिर कोई चीज की क्वांटिटी निकालनी होती है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय उस जिसके ऊपर आपको शीट्स लगानी है, यानी कि क्यूबॉइड, उसका टोटल सरफेस एरिया, राइट? सो यू कैन सी टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid divide by
एक शीट का यानी कि एक कलर्ड पेपर का एरिया, यानी कि अगर मैं टोटल एरिया को एक शीट के एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितनी नंबर ऑफ शीट्स लगेंगी वो आ जाएगा. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, राइट. सो यहाँ पे जिस क्यूबॉइड के ऊपर हमें ये कलर्ड शीट्स लगानी है उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय एक शीट का एरिया. तो एरिया ऑफ वन शीट, राइट. सो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कितनी शीट्स लगेगी ये कलर्ड पेपर की, ये पता चलेगा. यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन कलर्ड शीट, राइट. सो इस तरीके से हम इसको फर्दर परस्यू करेंगे. सो लेट अस फाइंड आउट नाउ. यू कैन सी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, द वुडन बॉक्स, राइट. सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर. Now you can see the total surface area of wooden box, right, will be. now हमें पता है कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है, 2 into LB plus BH plus HM, right. so ये तो है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के डायमेंशंस पता है. सो हमें यहाँ पे सिंपली इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. सो ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो यहाँ पे आप देख रहे 2 एज इट इज. नाउ L दैट इज लेंथ आपके पास कितनी है, 80 सेंटीमीटर. सो 80. नाउ ये L और B आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, रिमेंबर दिस. सो यहाँ पे इनटू B. सो द ब्रेड्थ इज 40 है, देन प्लस साइन. अब ब्रेड्थ कितनी है आप देख सकते हैं, अगेन दैट इज 40. नाउ मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो हाइट आपके पास कितनी है, दैट इज 20. अगेन यू कैन सी प्लस. अब हाइट कितनी है आपके पास, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय लेंथ. सो यहाँ पे लेंथ आपके पास कितनी है, 80. सो आपको सिंपली इस तरह से वैल्यूज को प्लेस कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है. नाउ फर्दर इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सो 8 4 जा 32, देन 2 zeros प्लस 4 2 जा 8, देन 2 zeros प्लस 2 8 जा 16 एंड 2 zeros, राइट. तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू सिंपली ऐड देम एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, सो दैट विल बी 3200, then 800 and further 1600. So these 2 zeros as it is. Now 2 plus 8 10, 10 plus 16 that is 26. 2 carry, 3 plus 2 5 and 1 6. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ गया आपके पास, 6600. अब यहाँ पे 6600 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. बट बिफोर लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट. सो 2 plus 8 10, 10 plus 6 16. So I have done a mistake here. You can see यहाँ पे 1 आएगा, 3 plus 1 4 and 1 5. So यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से, if you have to just keep concentration while doing each and everything, right. So यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको स्मार्टली करनी है. You can see this is 2, then 8 plus 2 10 plus 6 16, 3 and 2 5. Now इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. So that will be 2 times 0, 2 6 is 12, 1 carry, 2 5 is 10, 1 11. So आपके पास कितना आ चुका है यहाँ पे, 1 1 2 0 0. Now remember always area will be in meter or centimeter square, right. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमें गिवन था that is in centimeter, so centimeter square. So ये तो हो गया हमारा इस वुडन बॉक्स का एरिया. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे शीट्स जो कलर्ड पेपर है उनका भी एरिया निकालना है, एंड कलर्ड शीट्स वर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. और स्क्वायर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाई साइड इनटू साइड. सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द शीट हियर. सो अब मैं यहां पे बात करता हूं. यू कैन सी एरिया ऑफ कलर्ड पेपर और यू कैन से अ स्क्वायर. सो मुझे पता है स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड से कैलकुलेट करते हैं. अब यहां पे जो क्वेश्चन था, if I just cross check what was the side given to us, I have just erased the question here. So the side was 40 centimeter. So यहाँ पे हमें इस स्क्वायर यानी कि कलर्ड पेपर की साइड गिवन थी, that is 40 centimeter. So मुझे पता that will be 40, that will be 40 and that will be 40 here. So यहाँ पे मुझे पता साइड कितनी है, 40. So 40 into 40, you can see 4 4 जा 16 and 2 zeros. So that will be 1600 centimeter square, right? So यहाँ पे हमें कलर्ड शीट की जो साइड गिवन थी that was, you can see 40 centimeter. So side into side, that means 40 into 40, that will lead you to 1600 centimeter square. So यहाँ पे हमने इस
कलर्ड पेपर का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया जिसके ऊपर सेंटा क्लॉज की इमेज थी। नाउ अब मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन हम एक शीट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन मुझे पता है कि नंबर ऑफ ये कलर्ड पेपर यानी कि शीट्स कितनी लगेंगी, ये कैसे कैलकुलेट होगा, व्हेन वी डिवाइड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बाय द एरिया ऑफ वन शीट। सो यहां पे आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना निकला आपके पास 11200 एंड एक शीट का एरिया कितना आपके पास 1600। सो यानी कि मैं इसको इससे डिवाइड करने वाला हूं। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपली अब इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है आपके पास, इफ आई जस्ट रब दिस हियर, राइट। सो आप देख सकते हैं यहां पे अब मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना निकाला था 11200, देन एरिया ऑफ वन शीट वाज 1600, राइट। सो अगर आप दो जीरोस को कैंसिल आउट कर दे तो आपके पास बचेगा 112 डिवाइड बाय 16। नाउ लेट मी जस्ट चेक आउट नाउ 16 into 7 क्या होता है, सो 7 6 42, देन 4 कैरी 7 into 7 and 4 11। सो आप देखते हैं 16 into 7 क्या होता है 112। सो 16 के टेबल पे देखिए आप 16 1 16 एंड 16 7 जा 112। तो यहां पे आपके पास कितनी शीट्स आ गई 7 शीट्स, और यू कैन से कलर्ड पेपर। सो यू कैन सी यहां पे जो पूरे वुडन बॉक्स को कवर करने में कलर्ड पेपर की शीट्स लगेंगी, दैट इज इन द क्वांटिटी 7, राइट। और जिसको हमें कैलकुलेट करना था। सो जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब सॉल्व करेंगे फर्दर। सो दैट वाज ऑल इन द फर्स्ट एग्जांपल हियर। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ and let us see how to further apply on the surface area of a cube, right? So जो हमने formula देखा था 6a square, the total surface of area, how to actually apply on the formula onto a cube here, right? So now you can see this example number 2 is based on cube. So let us see. So यहाँ पे Hamid has built a cubical water tank with lid for his house. So यहाँ पे आप देख सकते हैं Hamid नाम का पर्सन है जिसने कि एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया, किससे, लिड की हेल्प से। यू कैन सी लिड क्या होती है, एक यू कैन सी एक तरह का ढक्कन यू कैन सी। सो यहाँ पे हमें पता है कि क्यूब जो है वो किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से। सो यहाँ पे जो ढक्कन है वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है। सो दैट मीन्स वी ऑल्सो नो नाउ यू कैन सी दैट क्यूब इज फॉर्म्ड ऑफ अ स्क्वायर। सो यहाँ पे ये जो लिड है वो किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर की फॉर्म होगा, राइट। सो यू कैन सी इफ आई जस्ट टॉक अबाउट लाइक दिस, सो यहां पे मैं एक क्यूबिकल वाटर टैंक बना लेता हूं। सो दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। सो ये तो जो है क्यूबिकल वाटर टैंक दैट वाज मेड बाय हामिद, राइट, विद द हेल्प ऑफ लिड्स। सो यहां पे ये जो सभी देख रहे हैं आप स्क्वायर्स हैं, ये क्या है, एक्चुअल में लिड्स है, राइट। सो नाउ यू कैन सी विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। सो ये जो क्यूबिकल वाटर टैंक जो हामिद ने फॉर्म किया, इसकी जो एज का मतलब होता है, लेट मी जस्ट टेल यू, अ साइड, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद एज एंड साइड, दे आर सेम। सो यहाँ पे ये जो क्यूबिकल वाटर टैंक इसकी साइड गिवन है दैट इज 1.5 मीटर। तो सभी लेंथ कितनी हो जाएंगी आपके पास 1.5, रिमेंबर दिस। सो दैट विल ऑल्सो बी 1.5, दिस विल बी 1.5, दिस विल बी 1.5, 1.5, all will be 1.5, you can see here. अब यहां पे फर्दर बढ़ते हैं, you can see he gets the outer surface of the tank excluding the base. So यहां पे आप देख सकते हैं इस पूरे आउटर सरफेस को किससे बनाया उसने, लिड्स से। So यहां पे लेकिन बेस का जो था वो उसने नहीं बनाया, राइट। सो यहां पे एक्सक्लूडेड है बेस। अब पहली चीज मुझे पता है कि जो क्यूब है वो स्क्वायर से मिलकर बना है, और एक स्क्वायर की अगर मैं एरिया की बात करूं, सो दैट इज ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं ए साइड मान लेता हूं, सपोज कीजिए इसकी, सो साइड स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेस यहां पे मिसिंग है, सो ये बेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, ये नहीं आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया जो कि 6 स्क्वायर से मिलकर बनाया है एक क्यूब, सो उनका एरिया क्या हो गया 6a स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहां पे बेस मिसिंग है, एक a स्क्वायर मिस हो जाएगा। सो अगर मैं 6 टोटल a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर माइनस कर दूं दैट विल बी 5a स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे जो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं जिसमें कि बेस मिसिंग है, आप देख सकते हैं एक्सक्लूडेड का मतलब मिसिंग है, राइट। सो यहाँ पे बेस का एरिया नहीं लेना, सो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। सो 6a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस किया दैट विल बी
5a²। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस टोटल क्यूबिकल वाटर टैंक का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। द टोटल सरफेस एरिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन। अब यहां पे देख सकते हैं आप, दिस क्यूबिकल टैंक मेड बाय हामिद वाज कवर्ड बाय, यू कैन सी, स्क्वायर टाइल्स। सो अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्क्वायर टाइल्स लगाई गई, यू कैन सी लाइक दिस। सो फॉर द डिजाइन यू कैन से, सो यहां पे आप देख सकते हैं सभी स्क्वायर टाइल्स इस तरह से प्लेस की गई फर्दर। अब यहां पे जो, अगर मैं एक स्क्वायर टाइल की बात करता हूं यहां पे, इफ आई जस्ट ड्रॉ वन स्क्वायर टाइल, सो मुझे यहां पे गिवन है कि जो स्क्वायर टाइल है उसकी साइड कितनी गिवन है मुझे, 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25 एंड दिस इज 25, राइट। सो यहां पे मुझे एक टाइल का एरिया भी निकाल सकता हूं मैं। मुझे पता है कि एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड स्क्वायर, यानी कि a²। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज साइड टू साइड, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बोथ आर सेम, राइट। सो नाउ जैसा कि अब फर्दर बढ़ते हैं आप, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन। सो मुझे पता है डजन में क्वांटिटी कितनी होती है, 12। सो यहाँ पे 12 टाइल्स का यू कैन सी कॉस्ट कितनी है, ₹360। सो कितना खर्चा होगा इसके ऊपर लगाने वाली टाइल्स के ऊपर, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। सो ये कैसे निकलेगा, कितनी टाइल्स इसके ऊपर लगेंगी। लाइक आपको ध्यान होगा कि इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वेयर देयर वाज अ वुडन बॉक्स और उसके ऊपर कलर्ड शीट्स लगानी थी। तो मैंने नंबर ऑफ शीट्स कैसे कैलकुलेट की थी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो वुडन बॉक्स था वो कैलकुलेट किया और एक कलर्ड पेपर का एरिया कैलकुलेट किया, देन उनको डिवाइड किया। सिमिलर स्ट्रक्चर विल एग्जिस्ट हियर। अब इसमें टोटल जो क्यूबिकल वाटर टैंक है उसका मैं पहले एरिया फाइंड आउट करूंगा, देन एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करूंगा। फिर अगर मैं टोटल वाटर टैंक का एरिया जो है अगर एक टाइल के एरिया से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स। गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाए एंड यू कैन सी, मैं अगर एक टाइल का एरिया यहां से निकाल लूंगा 360 को 12 से डिवाइड करके, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ टाइल्स से। सो यानी कि कितना खर्चा इन टाइल्स के ऊपर होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने की आएंगी वो पता चल जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर। सो लेट अस मूव ऑन। सो फर्स्ट step is we have to calculate the area of the total surface area of this cubical water tank, right? So let us start this. Then you can see total surface area of, now this is in the bracket, cubical water tank is equal to, now you can see हम formula कौन सा use करने वाले हैं, 5a², क्योंकि बॉटम मिसिंग है। रिमेंबर दिस, 6a² माइनस a², दैट इज 5a²। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 into a²। अब आप देख सकते हैं साइड मुझे गिवन थी इस क्यूबिकल वाटर टैंक की, सेम है। सो द साइड इज 1.5। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.5 मीटर्स। सो यहाँ पे मैंने a की जगह क्या रख दिया, 1.5 एंड इट्स स्क्वायर। सो a² क्या हुआ, 1.5 स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 5 into 1.5 into 1.5। अब आप चाहे तो इस मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट 1 मीटर में कितने होते हैं, आप देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर्स, राइट। सो यानी कि अगर मैं इस 1.5 मीटर को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। सो दैट विल बी, यू कैन सी, एक डेसिमल रिमूव होगी, 10 आएगा। सो दिस विल कैंसिल आउट। आपके पास कितना आ जाएगा, 15 into 10, दैट विल बी 150 सेंटीमीटर्स। तो चाहे आप इजी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 150 भी प्लेस कर सकते हैं। रिमेंबर दिस। So that will be 150 square, right? So now you can see यहाँ पे आप 150 सेंटीमीटर्स में प्लेस कर सकते हैं और चाहे तो आप 1.5 मीटर्स भी यूज कर सकते हैं, बट दैट विल मेक योर कैलकुलेशन लेंथी, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर चुका हूं, यहाँ पे मैंने 150 सेंटीमीटर प्लेस कर दिया, राइट। सो 150 का स्क्वायर, आप देख सकते हैं 5 into 150 का स्क्वायर का मतलब है 150 into 150, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, राइट। नाउ अगर मैं सारे को मल्टीप्लाई करता हूं, सो लेट मी जस्ट चेक आउट। आप देख सकते हैं 2 जीरो तो आएंगी। नाउ 15 into 15 225 होता है, 225 into 5, लेट मी जस्ट चेक आउट। सो दैट विल बी 5 5 to 25, 2 carry, 5 to 10, 11 12, 1 carry, 5 to 10 and 1 11. So you can see that will be 1 1 2 5 00, right? So this is going to be, you can see, the total surface area of this cubical tank, which is having excluding the base. So that's why we have used 5a². So this will lead you to, you can see,
112,500 centimeter square, the area of this cubical water tank. अब next step मैंने आपको बताया था, we are going to calculate the area of one tile which is going to be placed over this, right? So let us make some space. Now you can see, if I just talk about the area of one tile, so मुझे पता है कि एरिया ऑफ वन टाइल जो कि किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड इनटू साइड, राइट? सो यहां पे हमें साइड भी गिवन थी टाइल की, दैट इज 25 सेंटीमीटर, राइट? सो यू कैन सी दैट विल बी 25 इनटू 25. So 25 into 25, that is 625. You can multiply in the rough area, you will get 625. So that will be in also centimeter square, right? So यहाँ पे मैंने एक टाइल का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया. Now the next step is, we know that to calculate the number of tiles, we have to divide the total surface area of the cubical tank by the area of one tile, right? So now let me just write that. So if I just solve this here, so number of tiles can be calculated by total surface area of cubical tank divided by area of one tile, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक मैंने कितना कैलकुलेट किया, 112,500 डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना है आपके पास, 625, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले 5 के टेबल पे कट होगा, सो 5 1 जा 5, कितना बच गया 1, सो दैट विल बी 12. सो 5 2 जा 10, अगेन 2 मिसिंग, सो 2 and 5 25, 5 5 जा 25, राइट? नाउ फर्दर इसको भी रिड्यूस करते हैं, आप देख सकते हैं सेम टेबल पे 5 के, सो 5 2 जा 10, सो कितना रिमेनिंग हुआ 1, सो दैट विल मेक 12. सो 5 2 जा 10, अगेन you can see 2 remaining, 5 5 जा 25, and these two zeros as it is, right? Now 125 and 225, let me just write them like this. अब फर्दर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, सो 5 के टेबल पे अगेन काटता हूं, 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25. अब यहाँ पे सेम ये भी 5 के टेबल पे 5 4 से 20, 2 remaining, 5 5 से 25, 2 zeros as it is, right? Now you can see we have got 4500 divided by 25, right? Now let me just again cancel it. So 5 5 is 25, 5 9 जा 45, and 2 zeros as it is. अब आगे आपके पास 900 upon 5, right? So now let me just rub down side. So यहाँ पे आपके पास कितना आ चुका है, आप देख सकते हैं 900 divided by 5. Now let me just cancel out. So 5 1 जा 5, 4 remaining, that will make 40, 5 8 जा 40, and 0 as it is. So यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कितनी आ चुकी है, 180, राइट? सो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टाइल्स भी पता चल चुका है, दैट इज 180. अब बात आती है कि मुझे पता है कि पर डजन टाइल्स का कितना प्राइस है, 360 रुपीज, राइट? नाउ यू कैन राइट दैट कॉस्ट ऑफ वन टाइल मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि 12 टाइल्स का, यानी कि 1 डजन टाइल्स का प्राइस कितना है, 360. तो यानी कि अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं इस प्राइस को, तो मेरे पास 1 टाइल का कॉस्ट आ जाएगी, बिकॉज मुझे पता है डजन में कितनी टाइल्स आएंगी, 12. सो एक टाइल का एरिया कैसे निकालूंगा, डजन टाइल के एरिया को 12 से डिवाइड करके, राइट? सो दैट मीन्स इसको मैं सॉल्व करता हूं. सो 12 3 जा 36 एंड 0, सो 30 रुपीज की 1 टाइल है, रिमेंबर दिस. सो एक टाइल का प्राइस कितना है, 30 रुपीज. सो यहाँ पे टोटल टाइल्स मैंने कितनी निकाली है, 180, राइट? सो यानी कि मैं अगर टाइल्स का नंबर को एक टाइल के चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग दिस क्यूबिकल टैंक, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट मी जस्ट रब दिस. Now you can see the cost of tiling the cubical tank will be, आप देख सकते हैं टोटल टाइल्स कितनी थी, 180. Now multiply this with the cost of one tile, that is 30. Now 18 into 3, that is 54, and 2 zeros. So 5400 rupees, that will be the cost of tiling this, you can say, cubical water tank made by Hamid with the help of lids. So that was all you can see you have to find out in this question. So that is all in the example portion of this chapter before exercise 13.1. So I hope you have understood
each and every concept to find out the total surface area of a cuboid and a cube. So thanks a lot for watching this video here.